Okay, welcome guys to our Zoom webinar. We have been doing these series just to get more informative about different riding aspects and from various great speakers that we have in our country. So we are going to talk about more of how to become a superbike racer, because a lot of guys I have actually met and they really want to get into the sport, but they have a misinformation about everything. So this webinar is just going to let you into the insights of how to become one, how to source your permits, your licensing, and where to start from. Like if you don't have those expensive super bikes, 15 lakh, 20 lakh bikes with you, then what is the correct way to start into this national championship, and how to get through this into getting a national wide portfolio for yourself. So we are going to do this webinar with Simran, and first of all, a little bit about our company. So you must be knowing that KMI Tours is actually a tour operator, bulk operator company. So we have been doing motorcycle tour operations for quite a long time, and we have presence in our 4 offices in 4 countries. But our head office is located in India, in Delhi, and in Beijing, China. So we have been catering to 16 plus super biking clubs, like MZ Night in China, which is one of the biggest clubs in Beijing and Guangdong, and then we have Group of Delhi Superbikers, we have Patch of Seoul Superbikers, and various other biking clubs. So these are some of the two pictures that can be showcased. So apart from that, we have been doing tours for various brand of dealerships. Ducati, we have been doing it for BMW, for Honda, Triumph, Yamaha. So this is about us, and then we'll move on to a guest speaker. So as I said, Simran King, he's been into racing for quite a long time, and he's at very young age. He started just like after taking the lead from his father, Mr. Govinda Singh Matharu. So he has a list of records and achievements for himself. Like he has been 2 times, he has been the national championship, he has won national championships for 1000 cc's, and then he has been back from the BSBK in 2018-19 championship, which is the Bahrain Superbike Championship. And apart from that, he has been, there's a list of achievements that he has done, and so you can just have a look. And now I'll be transferring on the presentation to Simran, and he'll take over now. थैंक यू प्रीत भैया, थैंक यू प्रीत भैया मेरे को इनवाइट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो केयरमाई टूर्स को बहुत थैंक यू. और स्टार्ट करते हैं बेसिक. इंडिया में कितनी राइडिंग चैंपियनशिप्स होती हैं बेसिकली? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइडिंग चैंपियनशिप्स जो भी इंडिया में होती हैं. बेसिक अगर स्टार्ट करें तो अगर आपको स्टार्ट करना है स्मॉलर बाइक से, जो वन मेक चैंपियनशिप्स होती हैं, लाइक MRF वन मेक चैंपियनशिप जो होती है नेशनल चैंपियनशिप्स, तो उसमें क्या होता है, 2 कैटेगरीज होती हैं. डिफरेंट 2 कैटेगरीज आर देयर. वन इज नोवॉइस एंड वन इज ओपन कैटेगरी. सो नोवॉइस कैटेगरी में क्या होता है, जो भी राइडर्स एज ग्रुप 13 to 23 के बीच में है, तो वो राइडर्स नोवॉइस में स्टार्ट करते हैं, जो एंट्री लेवल अभी उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया होता है. और वन मेक्स वो कंपनीज कराती हैं, जैसे कि TVS हो गया. TVS आपका वन मेक चैंपियनशिप्स भी कराती है, जिसमें सिमिलर रेंज ऑफ बाइक्स होती हैं, सिमिलर बाइक्स होती हैं, उनमें सेम टायर्स, सेम इक्विपमेंट्स होते हैं. बस आपको वहां पर अपना राइडिंग गियर्स कैरी करके जाना है, अब वहां पर राइड करना है. वहां पर वो टायर, फ्यूल सब देंगे, और आपको बस अपने इवेंट का जो होता है, जो आपका राउंड का होता है, पर राउंड जो भी आपको चार्जेस आते हैं, समवेयर अराउंड 2500 to 3000 समथिंग, वो चार्ज पे करना है और आप वहां पर रेस कर सकते हैं. फिर ओपन कैटेगरी में ऐसे आता है कि ओपन कैटेगरी में वो लोग जाते हैं जो भी नोवॉइस से चैंपियनशिप विन करते हैं. विन करके वो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली ओपन सीरीज में चले जाते हैं. उसके बाद में जो राइडर्स 23 इयर्स से एज के ऊपर के होते हैं, तो वो राइडर्स ओपन कैटेगरी में ऑटोमेटिकली जाते हैं. अगर उन्होंने रेसिंग कभी किया हो या ना किया हो, वो तब भी ओपन कैटेगरी में ही जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एज. और जो दूसरी कैटेगरी होती है बिगर बाइक्स की, वो होती है जैसे कि जेके टायर नेशनल चैंपियनशिप, जो मैं भी करता हूँ. उसमें होता है 600 सीसी एंड 1000 सीसी कैटेगरी. वो ओपन क्लास होता है. अब उसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं.
आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने राइडिंग गियर जो भी पेपर सबमिट करने हैं आप वो करके आप ये 2 चैंपियनशिप्स कर सकते हो, जेके टायर या फिर MRF1 में एक चैंपियनशिप्स। अगर आपको लगता है कि आप स्मॉल बाइक से स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप जेके टायर 600 कैटेगरी में पार्ट ले सकते हो, जो कि आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी भी और एक बहुत अच्छा इवेंट होता है जेके टायर का। तो बस वी नेक्स्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रेसिंग ऑन ट्रैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल राइडिंग गियर चाहिए। तो आपको फुल लेदर राइडिंग गियर, फुल लेदर सूट, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होगे मेरी, फुल लेदर राइडिंग सूट, हेलमेट, सर्टिफाइड हेलमेट, डीरिंग लॉक, नॉर्मल रैचेट लॉक जो होते हैं जो सिटिंग में यूज करते हैं वो आपको अलाउड नहीं होते, और आपको मैश आपके गियर्स में अलाउड नहीं होता, लेदर ग्लव्स, फुल बूट्स, और आपको बैक प्रोटेक्टर एंड चेस्ट प्रोटेक्टर लगेगा आपको कोई भी ट्रेनिंग स्कूल करने में या फिर कोई भी रेसेस में। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी राइडिंग गियर की जो आपकी लाइफ सेव करती है बेसिकली। उसके बाद आप कोई भी ट्रैक स्कूल कर सकते हैं, लाइक एटॉमिक रेसिंग, ISB के कैलिफोर्निया सुपर बाइक स्कूल। कैलिफोर्निया सुपर बाइक स्कूल में कैसा होता है कि जो राइडर्स होते हैं कैलिफोर्निया सुपर बाइक स्कूल के वो फॉरेनर्स होते हैं, वो ईयर में एक बार ही आते हैं इंडिया, चेन्नई MMRT जो सर्किट है। और पहले बात करते हैं इंडिया में कितने सर्किट्स हैं। इंडिया में 3 टाइप्स के सर्किट हैं। पहला है बुध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में, और दूसरा है चेन्नई में MMRT, और तीसरा है कोयम्बतूर में कारी। तो कारी ज्यादातर स्मॉल बाइक्स का है, और MMRT पे आप 600,000 सीसी चला सकते हो, पर 1000 सीसी आप फुल एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और BIC तो आप सबको पता है कि आप वहाँ 1000 सीसी फुल्ली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप ट्रेनिंग स्कूल कीजिए। ट्रेनिंग स्कूल में आपका जैसे कि 2 दिन का ट्रेनिंग स्कूल होता है। आप पहले उसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 कर सकते हैं। लेवल 1 एंड 2 बेसिक होता है कि आपका बेसिक राइडिंग आपको सिखाते हैं, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, जो आप चीजें ऑलरेडी कर रहे होते हो आपको उससे फेमिलियर करवाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो राइडिंग स्कूल हैं ये सिर्फ ट्रैक राइडिंग स्कूल्स नहीं है, ये आपको रोड पे भी ये वाली टेक्निक्स बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जो भी राइडर्स ट्रैक ये स्कूल अटेंड करते हैं उनको ये स्ट्रीट पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बेसिकली संडे राइड या कहीं पर भी अगर आप टूरिंग कर रहे हो। और उसके बाद होता है लाइसेंस एप्लीकेशन, जैसे कि आप मेरे लाइसेंस की एक पिक्चर भी देख रहे होगे। मैं आपको, ये मेरा लाइसेंस है, तो ये मेरा लाइसेंस है। तो ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो जैसे कि 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक वैलिड होता है ये लाइसेंस। आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। जो मेरा ये लाइसेंस है, आप पिक्चर देख रहे होगे, इस पे लिखा हुआ है नेशनल फुल। नेशनल फुल मतलब मैं 400 सीसी से अबव कैटेगरी की बाइक्स चला सकता हूँ, नोवॉइस में मैं नहीं जा सकता। और एक आता है नेशनल रिस्ट्रिक्टेड। नेशनल रिस्ट्रिक्टेड में आप स्मॉलर सेगमेंट की बाइक्स चला सकते हो, नोवॉइस वाली बाइक्स कैटेगरीज कर सकते हो उसमें। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में आप जेके टायर नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगर सेगमेंट है। एंड बस नेक्स्ट करेंगे। और ये वेबसाइट है FMSCI की, दी फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। आप तो इसमें आप जाके कंपटीशन लाइसेंस पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो इसमें क्या होगा, आपको इसमें बेसिकली 2 फॉर्म्स आपको मिलते हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं। एक होता है आपका इंडेमनिटी, और सेकंड होता है आपका मेडिकल। एक फॉर्म होता है, जो मेडिकल फॉर्म होता है बेसिकली आपको अपने डॉक्टर से जाके फिल कराना होता है, प्रूफ कराना होता है, उसका सिग्नेचर एंड स्टैंप लगता है। अब वो स्कैन करके इनको ऑनलाइन सबमिट कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। और जो आपका सारा हार्ड कॉपी है आपके लाइसेंस का, वो आप इनके गिवन एड्रेस पे आपको सेंड करना होता है, और विद इन 2 to 3 वीक्स आपका लाइसेंस बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाता है। इन केस अगर आपके पेपर्स कुछ कंप्लीट नहीं होते बेसिकली, तो आपको एक मेल आ जाएगा, और आपको या तो आपके पेपर्स रिटर्न भी आ सकते हैं कि आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये साइट पे आप जाके देख सकते हैं। इस पे आपको कैलेंडर मिलेगा कि ईयर में इंडिया में कितनी रेसेस होती हैं, कार्स की, बाइक्स की, नेशनल चैंपियनशिप्स। आपको सब कैलेंडर्स, फॉर्म्स, ट्रेनिंग अकेडमीज की लिस्ट, आपको सब कुछ इधर ये वाली साइट पे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉर्नरिंग टेक्निक से।
और कॉर्नरिंग जो कॉर्नर जो होता है, मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एंट्री, मिड कॉर्नर एंड एग्जिट। मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूँ जब भी मैं कुछ भी कहीं पर ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, या फिर मैं अपने किसी मैं समझा रहा होता हूँ किसी को कुछ भी। तो एंट्री में बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा राइडर्स क्या करते हैं, जब वो एंट्री ऑफ द कॉर्नर में वो पहुंच जाते हैं, वो तब अपनी बॉडी पोजीशन बाइक से आउट करते हैं, ऊपर होते हैं, या फिर बाइक, हाँ बेसिकली जो आप सीट से उठ के जो आप हाफ बम बार करते हो, आप थोड़ा सा हाफ बट बार करते हो, आप बॉडी पोजीशन लेते हो, तो वो एंट्री ऑफ द कॉर्नर में ही करते हैं लोग। तो उससे क्या होता है, आपकी बाइक अनसेटल हो जाती है, जो आपका सस्पेंशन होता है वो अनसेटल हो जाता है। अनसेटल होने की वजह से आप एपेक्स हिट नहीं कर पाते और आप वाइड जाते हो बेसिकली। और इसमें अगर आपको एंट्री बेटर करना है तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन पे ही जब आप फुल गैस में आ रहे हो तो आपको हाफ वर्ड तभी बार कर लेना है, और आपको बस आपको थ्रॉटल से रोल ऑफ करना है, ऊपर होना है और बस टर्न इन कर देना है। और जैसे ही आप मिड कॉर्नर पे पहुंचोगे तो आपको मिड कॉर्नर में क्या करना है, मिड कॉर्नर पे आपको आपको बस थोड़ा सा थ्रॉटल मेंटेन करके रखना है ताकि आप ग्रेजुअली ओपन कर सको एपेक्स हिट करते ही। तो जैसे ही आपको कॉर्नर हिट होता है तो आप ग्रेजुअली थ्रॉटल ओपन करना स्टार्ट कर देना, तो आपकी करेक्ट लाइन आएगी। अगर कई राइडर्स ऐसे करते हैं जो चॉपी थ्रॉटल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चॉपी थ्रॉटल, वो कभी ऑन एंड ऑफ करते हैं, तब भी आपकी बाइक अनसेटल होती है, क्योंकि आपकी बाइक के सस्पेंशन अनसेटल होता है, तो आपके वाइड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और आपके क्रैश करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें एक और चीज है कि जो हम नॉर्मली ट्रैक पे रूल यूज करते हैं एक कॉर्नर पे, वो होता है आउट इन आउट। मतलब कि आउट पहले हम बाहर से आते हैं, फिर अंदर एपेक्स टच करते हैं, इन फिर हम थ्रॉटल जब देते हैं मिड कॉर्नर पे तो हम वाइड जाते हैं, तो आउट। तो आउट इन आउट ये वाली थ्योरी हम रोड पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक होता है, तो हम ये वाली चीजें हम ट्रैक पे यूज करते हैं। और बस नेक्स्ट करिए। तो करेक्ट बॉडी पोजीशन एंड बॉडी पोजीशनिंग, बेसिकली जो भी राइडर्स होते हैं, अगर आप स्ट्रीट पे आप चला रहे हो तो कहीं पर भी आपको मोड़ना है, तो ज्यादातर क्या होता है, आपको एक फियर होता है कि बाइक से अगर साथ में आप गए, आपका विजन भी ब्लॉक हो जाता है और आपको थोड़ा डर लगता है कि बाइक गिर जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप मोटोक्रॉस स्टाइल यूज करते हो ट्रैक पे, कि आप बाइक को नीचे कर देते हो और आप खुद अपराइट रहते हो। तो इसमें क्या होता है, आपके लो साइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जो आप नीचे करेक्ट बॉडी पोजीशन देख रहे हो उसमें राइडर इतनी स्मूथली टर्न इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसने सारा अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स कॉर्नर के मिड में डाला होता है। और मैंने इधर एक और चीज ये बनाई है, तो ये है ये रॉन्ग बॉडी पोजीशन का है कि ये जो ये वाली लाइन है, ये है बाइक और ये राइडर है, तो ये पैरेलल नहीं है, तो ये आपकी रॉन्ग बॉडी पोजीशन है। तो जैसे जो ये है करेक्ट बॉडी पोजीशन, इसमें आपकी बाइक और आपका राइडर, ये बाइक से आप इसकी राइडर की बैकबोन पैरेलल है, तो ये करेक्ट बॉडी पोजीशन है। जो आप करेक्ट बॉडी पोजीशन देख रहे हो, अब आपको समझ भी आ रहा होगा। तो जो भी आपकी बैकबोन होती है वो बाइक की लाइन में ही ऑफ आनी चाहिए बाइक से, तो वो उसको करेक्ट बॉडी पोजीशन कहते हैं। बस नेक्स्ट। तो हाउ टू बिल्ड अ ट्रैक बाइक, तो बेसिकली अगर आप ट्रैक पे जाना स्टार्ट कर रहे हो तो आप बेसिकली अभी अगर आपको है कि मेरे को बाइक प्रेप ज्यादा नहीं करनी, तो आप बस सेफ रहने के लिए एक अच्छे सेट ऑफ टायर्स यूज कर सकते हो, सेमी स्लिक्स या फिर स्लिक टायर्स, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको एक कांटेक्ट पैच, अच्छा कांटेक्ट पैच देने में। कि अगर आप कोई भी लेट सपोज कि आप कुछ भी थ्रॉटल कहीं पर आपने ज्यादा दे दिया, तो आपको टायर सेव कर लेगा बिकॉज ऑफ ग्रिप। तो आप पहले टायर्स चेंज कर सकते हो, फिर टायर्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप सस्पेंशन सेटअप आप करवा सकते हो। बेसिकली जैसे कि मैं भी सस्पेंशन सेटअप करता हूँ, मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है ये सेटअप करना, तो हम सस्पेंशन सेट करके टायर की लाइफ अच्छी मेंटेन कर सकते हैं और राइडर को एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील दिला सकते हैं बाइक पे, कि वो कुछ भी कर सकता है, जहाँ जहाँ को वो चाहता है वो बाइक जाए, वो वहां पर बाइक जाएगी। फिर अगर आपको अगर लगता है आपकी बाइक में पावर बहुत कम है, आपको लगता है कि आपने पूरी पावर यूज कर ली हुई है, तो आप ECU फ्लैश कर सकते हो या फिर कोई भी
रीमैपिंग कर सकते हो, कोई भी मॉड्यूल लगा सकते हो जिससे आपकी बाइक की पावर थोड़ी सी इनहेंस हो जाए। और सेफ्टी ऑफ राइडर्स, जैसे कि आज की डेट में सबसे ज्यादा एयर बैग चल रहे हैं, एयर बैग राइडिंग जैकेट्स आ गई हैं, एयर बैग सूट्स आ गए हैं। तो मैं भी जैसे पीछे देख रहे होगे, जो ये है मेरी राइडिंग वेस्ट है, तो इसमें क्या है, ये मेरी वेस्ट है, मैं सूट के अंदर डालता हूँ तो इन केस ऑफ क्रैश तो ये डिप्लॉय कर जाता है और हमें सेव करता है। और अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो तो आप कोई भी राइडिंग गियर्स ऐसे ही डाल के नहीं जा सकते, आपको राइडिंग गियर्स अच्छे ब्रांड के डालने होंगे जो कि आपको सेव करें ट्रैक पे कुछ कुछ भी मिसहैप में। नेक्स्ट, तो बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन। जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है वो है इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन। इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन उन बाइक्स में आ रहा है जैसे कि CBR 1000 RR SP, BMW प्रो मॉडल या फिर डुगाटी V4S, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन बेसिकली ये उन राइडर्स के लिए है जो कि न्यू कमर्स है, बाइक पे न्यू कमर्स है, जो कि ज्यादा सेट नहीं कर सकते उनको, और बाइक ही सब कुछ करती है राइडर के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इजी है कि अगर आप राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो ट्रैक पे तो ये वाले सस्पेंशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी टाइमिंग्स कट डाउन करने में और आपको सेफ रखने में बेसिकली। और अगर आप रोड पे भी चला रहे हो तो रोड पे क्या होता है कि अगर बम्पी रोड आ गई तो ऑटोमेटिकली ये 1 सेकेंड में 100 टाइम्स कैलकुलेट करता है कि बम्पी रोड्स आ गई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंशन उस लेवल तक सॉफ्ट कर देता है कि आपको बम्प्स ज्यादा फील ना हो। और जब भी आप कोई प्लेन रोड पे चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये स्टिफ कर देगा ताकि आपको बेटर हैंडलिंग मिल सके और कंफर्ट। और मैनुअल सस्पेंशन की बात करें तो मैनुअल सस्पेंशन में क्या होता है, हम खुद इसको अकॉर्डिंग टू राइडर और अपनी नीड एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट राइडर को पूछोगे तो वो हमेशा मैनुअल सस्पेंशन ही ऑप्ट करेगा, बिकॉज ऑफ कि अगर आप एक कॉर्नर में पहुंच रहे हो, अगर अप्रोच कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक जो सस्पेंशन है उसका फीडबैक हमेशा अलग होगा सेम कॉर्नर पे। पर अगर आप मैनुअल सस्पेंशन पे जा रहे हो, अगर आपने उसको सेट करा हुआ है तो सेम कॉर्नर पे अब अगर आप 20 लैप्स भी कर रहे हो तो आपको सेम फील देगा, वो आपका डिफरेंट फील नहीं आने देगा अब मैनुअल सस्पेंशन। तो बस दोनों डिफरेंस यही था मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन में। तो नेक्स्ट, तो मेंटेनिंग अ ट्रैक बाइक, तो ट्रैक बाइक की मेंटेनेंस नॉर्मल रोड बाइक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप रेगुलर ट्रैक डे कर रहे हो, आप डेडिकेटेड ट्रैक राइडर हो, तो पहले तो है सर्विस शेड्यूल। तो बेसिकली जो रोड सर्विस शेड्यूल होता है, रोड सर्विस शेड्यूल होता है आपका 5 to 6,000 किलोमीटर्स पे आप ऑयल चेंज करते हो, ऑयल फिल्टर चेंज करते हो, एयर फिल्टर क्लीन करते हो। और तो ट्रैक में इसमें क्या होता है कि ट्रैक पे आपको हर 800 to 1200 किलोमीटर्स के बीच में आपको अपना इंजन ऑयल ये वो सब कुछ सर्विस कर देना होता है, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग इंजन लाइफ, कि आपको इंजन की लाइफ बेटर होती है बेसिकली, क्योंकि हम हाई आरपीएम यूज कर रहे होते हैं ट्रैक पे। और हाई आरपीएम पे बेसिकली इंजन हीट की वजह से भी जो ऑयल की विस्कोसिटी होती है वो लूज होती है। तो उससे अच्छा आप जब फ्रेशर ऑयल पे जाते हो तो आपका बाइक का जो इंजन है उसकी लाइफ बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। जनरल चेकअप में अपनी बाइक का नॉर्मली मैं क्या चेक करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो नॉर्मली मैं सारे बोल्ट्स चेक करता हूँ अपनी बाइक के, क्योंकि मेरा कोई बोल्ट लूज ना हो कि जो ट्रैक पे कुछ क्रैश का कुछ ऑप्शन बने। तो बस जनरल चेकअप में मैं वो करता हूँ। अपना चेन स्लैग चेक करता हूँ, तो जो नॉर्मल आप रोड पे जो चेन स्लैग रखते हैं उससे थोड़ा सा लूज रहता है जो भी चेन स्लैग होता है ट्रैक पे, क्योंकि जब भी हम हार्ड एक्सेलरेट करते हैं एग्जिट ऑफ द कॉर्नर पे तो हमारा रियर एंड पूरा स्कॉट करता है और चेन टाइट हो जाती है, तो वो ज्यादा टाइट ना हो, ब्रेक होने के चांसेस ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज रख के चलते हैं चेन। और टायर्स की बात करें तो हम ड्राई में यूज करते हैं स्लिक टायर्स बेसिकली, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर्स। तो जो इस पे होल्स जो बने हुए हैं, तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये होल्स किसके लिए हैं। तो ये होल्स उसके लिए होते हैं कि हम मेजर कर पाए कि कितना टायर की लाइफ रह गई है, क्योंकि इस पे कोई मार्क नहीं होता तो हम इनसे देख के चेक करते हैं कि टायर लाइफ कितनी रह गई है हमारी। और जो हम वेट में यूज करते हैं वो वेट रेसिंग टायर्स यूज करते हैं। और सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो बेसिकली हम जो भी सस्पेंशन यूज करते हैं जैसे रेसिंग सस्पेंशन, तो जो भी चीज रेसिंग में यूज होती है उनकी जो सर्विस पीरियड है
वो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। तो जो भी हम सर्विस जो भी हम रेसिंग सस्पेंशन यूज करते हैं तो उसकी बहुत फ्रीक्वेंटली हम उसको सर्विस देते रहते हैं ताकि वो हमें प्रिसाइज फील देता रहे ट्रैक पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ट्रैक पे हम बात करते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स का क्या होता है, जो भी हम ब्रेक ऑयल यूज करते हैं, लाइक हाई बॉइलिंग टेम्परेचर ब्रेक फ्लूइड जो भी हम यूज करते हैं, एंड सॉफ्ट कंपाउंड ब्रेक पैड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है रेसिंग रेसिंग ब्रेक पैड। वो जो ये है स्ट्रीट वाला ब्रेक पैड। तो स्ट्रीट वाले की लाइफ ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि ये हार्ड होता है, वो ट्रैक वाले थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है कि हमें हर ट्रैक डे के बाद में हमें ब्रेक पैड्स चेक करने होते हैं, अपने कैलिपर्स सर्विस करनी होती है, डिस्क क्लीन करनी होती है, और एक बारी ब्रेक भी अच्छे से ब्लीड करनी होती है ताकि हमारे फेड आउट के चांसेस ना रहें जब भी हम हायर स्पीड्स पे हैं। बस नेक्स्ट, मेंटेनिंग रोड सुपरबाइक। रोड पे आपको बेसिकली नॉर्मल सर्विस शेड्यूल आपका वही रहता है 5 to 6,000 किलोमीटर्स, क्योंकि आप उतने हाई आरपीएम्स पे नहीं जा रहे होते, हायर स्पीड्स पे नहीं जा रहे होते। और टायर वेयर अनवेयर टायर पैटर्न ये आपको देखना होता है जब भी आप घर से निकलते हो। तो आपका जो टायर्स होते हैं वो होते हैं कोल्ड। तो कोल्ड टायर में क्या होता है कि जब भी वो हीट हो जाते हैं तो आपके अंदर की एयर इन्फ्लेट करती है, और इन्फ्लेट होने के बाद वो टायर डिफरेंट टाइप से वेयर आउट होता है, और कोल्ड टायर डिफरेंट टाइप से वेयर आउट होता है। तो डिफरेंट अनइवन पैटर्न आ जाते हैं आपके ट्रैक टायर पे, जो आपकी हैंडलिंग इफेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप नए टायर सेट पे जाओगे तो आपको एकदमली ड्रास्टिकली चेंज आएगा आपकी हैंडलिंग में, बाइक हैंडलिंग में। तो आप बस टायर्स के ये अनइवन मार्क्स देख सकते हो। ब्रेक्स आप नॉर्मली चेक कर सकते हो, ब्रेक्स ओवर द पीरियड की घिस ना गया हो, कुछ ना हो गया हो, और इसमें कि आप क्लीन कर सकते हो, क्योंकि रोड पे चला चला के डस्ट ज्यादा आ जाता है ब्रेक पैड्स पे। तो आप इसको टाइम टू टाइम सर्विस कर सकते हो कि ज्यादा आपको ब्रेक लाइक कम ना लगे, कि जैसे कि आवाज आने लग जाती है एक। और जनरल चेकअप में बेसिकली आप ये चेकअप कर सकते हो, जैसे कि संडे राइड करनी है आपको, तो आपको फ्राइडे या सैटरडे आप अपनी पूरी बाइक चेक कर सकते हो, एक बारी क्लीन कर सकते हो, सारे बोल्ट चेक कर सकते हो, और अपनी शॉकर ऑयल सील्स देख सकते हो, आप कहीं से लीकेज ना हो, चेन चेक कर सकते हो। बस बेसिकली आप ये चेक कर सकते हो। और जो सस्पेंशन लीक का इशू आता है, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जैसे कि राइट फोक का आपका फोक का ऑयल सील लीक कर गया, तो उसको आप एक साइड का सर्विस सेंटर में जाके या कहीं पर भी आप उसको सर्विस करवा लेते हो। उसमें क्या होता है कि जब भी आप लगाते हो वो फोक, और आप कुछ टाइम बाद देखते हो आपका जो टायर वेयर है वो अनइवन हो गया है। वो इसीलिए अनइवन हो जाता है क्योंकि दोनों फोक्स में आपका ऑयल और एयर गैप डिफरेंट है। तो जब भी आपका एक साइड का फोक सील लीक करता है तो आपको दोनों साइड के फोक सर्विस करवाने चाहिए, क्योंकि वो इक्वल बैलेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट, तो रेसिंग एकेडमी से स्टार्ट करते हैं। रेसिंग एकेडमी में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला होता है बिगनर, जो कि बस अभी ट्रैक डेज जो करना स्टार्ट किया होता है उन्होंने। तो बिगनर लेवल पे बेसिकली ये सिखाते हैं कि काउंटर स्टीयरिंग कैसे कर सकते हैं। बॉडी पोजीशनिंग मेन होती है बिगनर लेवल पे, कि आपकी करेक्ट बॉडी पोजीशन मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप करेक्ट बॉडी पोजीशन मेंटेन नहीं करोगे तो आप रॉन्ग बॉडी पोजीशन पे ही लगे रहोगे, तो आपके टाइमिंग्स कट डाउन नहीं होंगे और आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे उतना। और सेकेंडली इंटरमीडिएट, जो लोग ऑलरेडी ट्रैक कर रहे होते हैं और वो रेस का प्लान कर रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें एक फियर होता है कि रेस कैसे होंगी, क्या करेंगे, मैं गिरूंगा तो नहीं, फास्ट राइडर्स होंगे। तो बेसिकली हम उसके लिए उसको प्रेप करते हैं ट्रैक डेज पे उनके साथ चला के, कि आप ऐसे कर सकते हो। उनको रेस स्टार्ट करवाते हैं, हम सारी चीजें करवाते हैं सब कुछ, कि वो रेस के लिए प्रेप हो सके। और प्रोफेशनल रेसर जो थर्ड जो पॉइंट है, ऑलरेडी डूइंग ट्रैक डेज एंड रेसेस, जो ऑलरेडी ट्रैक डेज कर रहे हैं, रेसेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, प्रोफेशनल रेसर, उनकी बॉडी पोजीशनिंग बहुत सही है, सब कुछ अच्छा है, पर उनके टाइमिंग्स कट डाउन नहीं हो रहे होते। उनके लिए हम क्या कराते हैं, उनके लिए वन ऑन वन हम सेशन रखते हैं। तो उसकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं हम उनके साथ चल के कैमरा पे रिकॉर्ड करके, या फिर वर्बली हम ऐसे देख के उनको बाइक पे विजुअली देख के
हम राइडर को बताते हैं कि आप ये वाली मिस्टेक कर रहे हो, अगर वो दोबारा मिस्टेक कर रहा होता है हम फिर उसको अंदर लेके आते हैं पिट्स में, हम दोबारा से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप अभी भी ये गलत कर रहे हो, जब तक वो सही नहीं करता। जब वो इम्प्रूव कर जाते हैं तो थर्ड सेशन जो थर्ड पॉइंट है वो उसके लिए है। फिर है सेटअप फॉर राइडर्स, फोर्थ पॉइंट। तो बाइक सेटअप अकॉर्डिंग टू राइडर्स नीड। जो एक राइडर होता है उसको बाइक पे फील ऐसा हो रहा होता है कि हाँ मैं बाइक को कॉर्नर पे अंदर डालने को कर रहा हूँ पर बाइक वाइड जा रही है। तो बेसिकली वी सेटअप बाइक फॉर राइडर अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि उसको बाइक कैसी चाहिए, कि उसको सस्पेंशन सेटअप ऐसा करके देते हैं हम कि वो बहुत ज्यादा सेफ रहता है अपनी बाइक पे। क्योंकि अगर सस्पेंशन सेटअप सेफ नहीं होगा और अगर आप पुश करोगे तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम सस्पेंशन सेट भी करते हैं। नेक्स्ट Q&A। तो जो भी आपने क्वेश्चंस नोट करे होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो वन बाय वन। Guys, if you have any questions, you can ask regarding superbikes, normal superbiking as well. Simran, I just want to know we can use any bike on track. Let's say I have a Triumph Bonneville. We Yes, can use that also on the track. yes. Already we have 2 to 3 people who are using Triumph Bonneville on track. बट फॉर दैट आपको थोड़ा टायर्स के लिए थोड़ा वो होना पड़ेगा कि आपको टायर्स चेंज करने पड़ेंगे और थोड़ा सा आपको सेफ चलना होगा। आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी बाइक को चलाना है तो आपको थोड़ा सा सेफ चलना होगा बॉनेविल पे, क्योंकि बॉनेविल हैवी है बेसिकली। तो जब भी आपको कॉर्नर करना होगा तो आपको बेसिकली थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, बाइक से यूज टू होना पड़ेगा और आपको अच्छे टायर्स लगेंगे बाइक को ट्रैक पे लेके आने के लिए। Simran, there's a question on chat box. Simran, open your chat box. Can sports tourer bike like Ninja 1000 be used on track? ट्रैक पे आप यूज कर तो सकते हो इसको, बट आप नॉर्मल रेस नहीं कर सकते, आप नॉर्मल ट्रैक डे कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रैक डे कर सकते हो। इवन मेरा एक फ्रेंड है, आप सब जानते होंगे, सागर शिल्डेकर, उसने H2SX वो ट्रैक पे चला रहा था और वो ऐसे चला रहा था, आप उसके अकाउंट में जाके पिक्चर्स देखोगे, वो नी डाउन सब कुछ कर रहा था उस पे। तो इस पे भी नॉर्मली नी डाउन हो सकता है ट्रैक पे, पर आपको बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा टायर्स के साथ में बस। Okay, Simran, I have a question. This is Yes. Can I ask a question? Yeah, please go ahead. Yeah. So, hi Simran. I ride a Hayabusa. Okay. आपके साथ मुलाकात हुआ ट्रैक पे, आपने चलाया भी था आपके ट्रैक डे पे, आपको याद होगा, रेड हायाबुसा। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, मैं 2-4 बार आपके साथ करा हूँ राइड। तो ये हायाबुसा में ले तो आता हूँ लेकिन काफी हैवी रहती है। तो मेरे पास एक्चुअली बाइक एक ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ एफिशिएंट हायाबुसा वुड बी फॉर से अ प्रोफेशनल राइडर लाइक यू, एंड एज पर यू कितना फर्क पड़ जाता होगा अगर हम एक हायाबुसा चलाएं vis-a-vis अगर जो आप बाइक चलाते हो, एक नॉर्मल ट्रैक टाइमिंग में कितना फर्क पड़ जाएगा? अगर आप चलाओगे तो उसमें कितना लैप कर सकोगे? जैसे आपका बेस्ट आई थिंक 158 समथिंग है, तो अगर वो आप हाँ जी, मेरा जो न्यू लैप टाइमिंग है वो 156। हाँ 156। तो जैसे अगर आप भूसा चलाओगे तो आपको क्या लगता है 156 कितना कर पाओगे? बेसिकली जो मेरी बाइक है वो हाईली मॉडिफाई है वो टाइम करने के लिए, और उसमें अकॉर्डिंगली पार्ट्स जो लगे हुए हैं वो मेरे अकॉर्डिंगली लगे हुए हैं। अगर हायाबुसा पे हम नॉर्मली अगर ट्रैक करें तो ऑलरेडी कई राइडर्स हैं बहुत अच्छे जो ट्रैक कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो 220 से नीचे कर रहे हैं। लाइक आप जानते होंगे माजिद खान, तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम कर रहे हैं उस पे भी, और अब वो उन्होंने स्विच करा है जिक्सर पे। तो हायाबुसा स्टेबल तो है बाइक पे, आप कॉर्नर पे भी बहुत अच्छा स्टेबल है, पर उसका वेट मेन कंसर्न है और उसकी ब्रेक्स, क्योंकि आप इतने वेट के साथ में आपको ब्रेक्स थोड़ा सा वीक हो जाती हैं। तो अगर आप ट्रैक पे आ रहे हो तो आप अच्छे ब्रेक पैड्स यूज करो और आप उसको चला सकते हो। और अगर आप जब भी ट्रैक पे आते हो तो आपने जब भी लास्ट ट्रैक डे किए थे आपने टायर प्रेशर सेट किया था उसका?
टायर प्रेशर उन्हें मुझे उतना 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 नॉलेज नहीं है, कितना होना चाहिए टायर प्रेशर? हाँ, तो जो नॉर्मली है आपकी बाइक का, आप कौन से टायर्स यूज कर रहे हैं? पिरेली के हैं वो, रॉसी 3, डियाब्लो रॉसो 3। आप डियाब्लो रोसो 3 यूज कर रहे हो तो आप रियर में यूज करो 26, और आप फ्रंट में यूज कर सकते हो 28। तो जो ओके ट्रैक टायर प्रेशर चलता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ओके तो इसीलिए आप रियर में यूज करो 26 एंड फ्रंट 28। ओके, बिकॉज नॉर्मल रोड में तो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मली आप काफी ज्यादा यूज करते हो क्योंकि 40 42। जो भी ट्रैक पे क्या होता है, बेसिकली हमें कांटेक्ट पैच ज्यादा चाहिए होता है, तो ओके इसीलिए हम टायर प्रेशर अकॉर्डिंगली करते हैं। डिफरेंट टायर प्रेशर उस पे होता है, आप जैसे टायर्स डिफरेंट यूज करोगे तो आपके टायर प्रेशर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। ओके। और कोई टिप्स हो सकती हैं अगर मुझे हायाबुसा पे अपनी टाइमिंग इंप्रूव करनी है तो? अगर हायाबुसा पे आपको टाइमिंग इंप्रूव करनी है तो आप बेसिकली बॉडी पोजीशन पे अपना ज्यादा कंसंट्रेट करो। जैसे ही कॉर्नर्स आ जाता है तो आप अपनी बॉडी स्टिफ मत करो, आप अपनी बॉडी लूज रखो, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी स्टिफ करोगे तो आपकी बाइक वाइड जाएगी। अगर अपनी बॉडी आप लूज रखोगे, तो अपर बॉडी लूज रखोगे तो आपकी बाइक ऑटोमेटिकली आपके वेट के साथ में और बाइक के वेट के साथ में कॉर्नर एपेक्स हिट करेगी सही से। ओके, थैंक्स। वेलकम Simran, I have a question also. जी। Can you please explain trail braking? बेसिकली ट्रेल ब्रेकिंग वो होता है, जैसे कि नॉर्मली राइडर्स क्या करते हैं, आप एक कॉर्नर अप्रोच कर रहे हैं, तो कॉर्नर अप्रोच करते करते जो आप स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर रहे होते हो वो नॉर्मल ब्रेकिंग होती है। और ट्रेल ब्रेकिंग उसको कहते हैं कि आप मिड कॉर्नर एपेक्स तक जो आप ब्रेक होल्ड करके जाते हो और उसको लाइट आराम आराम से रिलीज करते हो, उसको ट्रेल ब्रेकिंग कहते हैं। तो उसमें ज्यादातर राइडर्स ये बोलते हैं कि मैं मिड कॉर्नर तक ब्रेक पकड़ के जाऊंगा, स्लाइटली रिलीज करता जाऊंगा तो मेरे फ्रंट वॉश आउट होने के चांसेस हो जाते हैं। यस, उसमें चांसेस होते हैं, पर अगर आप अच्छे टायर्स यूज कर रहे हो, जैसे कि आप अपनी S1000 में यूज कर रहे हो स्लिक टायर्स, तो उसमें आप करेक्ट टायर प्रेशर से आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि जब आप ब्रेक करोगे ट्रेल ब्रेकिंग में करते हुए, लीन करते हुए, तो आपका कॉन्टैक्ट पैच बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका व्हील बेस शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका कॉर्नरिंग इजी कर सकते हो, उसमें टर्न इन बेसिकली इजी हो जाएगा। Thank you. There is a question on chat box, Simran, by Atul. I tend to get uncomfortable while riding with gloves on. I feel like I have a better connection with my bike when riding without gloves. I know it's not safe, but I feel like I have better control without gloves. How do I get more comfortable riding with gloves? So basically क्या होता है, जब भी आप ग्लव्स डालते हो, बहुत राइडर्स को होता है कि वो ग्लव्स के साथ में राइड नहीं कर पाते हो, बिना ग्लव्स राइड करते हैं। तो जब भी आप ग्लव्स लो तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा डाल के रखो। तो जब भी मैं भी कोई नया राइडिंग सूट लेता हूँ या फिर ग्लव्स लेता हूँ, बूट्स लेता हूँ, मैं उसको सारा दिन डाल के रखता हूँ। या फिर घर पे भी बैठे हुए हूँ, टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको डाल के रखो ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो आपको एक आपकी बॉडी का पार्ट ही बन जाता है और वो बेड इन हो जाता है अच्छे से। और फिर जब आप राइड करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा ग्लव्स के साथ राइड करोगे, तो वो एक आपकी हैबिट बन जाएगा, क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल हो गया होगा। अभी जब भी आप उसको यूज करते होगे ग्लव्स को, तो आप ज्यादा देर डालते नहीं होगे, तो इसीलिए वो अनकंफर्टेबल फील करता होगा, एक कनेक्शन नहीं आता होगा। मेरे साथ उल्टा है, अगर मैं बिना ग्लव्स के राइड करता हूँ तो मेरे से राइड नहीं किया जाता। तो एक और मैसेज है, what should be modification done on a Bonnie for a track day other than tires and the should be rider weight? राइडर वेट पे भी डिपेंड करता है बेसिकली बाइक का। और अगर बॉनी में ज्यादा आप चीजें कर नहीं सकते, बेसिकली आप उसमें डायरेक्ट ब्रेक लाइंस डाल सकते हो फॉर बेटर ब्रेकिंग एंड अच्छे ब्रेक पैड्स डाल सकते हो। और उसमें आपका राइडर वेट ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आपको विंड ड्रैग बहुत ज्यादा आएगा, तो आपको थोड़ा सा राइडर वेट लूज करना पड़ेगा। तो बॉनी के लिए आइडल राइडर वेट आपको रहेगा अराउंड 70 to 80 kgs के बीच में, सही रहेगा। सिमरन, आई एम मोहित, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। यस। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक बताई
हाँ। बहुत इंफॉर्मेटिव थी, थैंक यू सो मच उसके लिए। बट मेरे पास कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में मुझे पूछना है। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग के अंदर कैटेगरीज होती हैं 3, जैसे ओपन कैटेगरी हो गई हाँ जी या ओपन सीरीज हो गई। तो जी इसके अंदर जैसे मेरे को भी स्टार्ट करना है ट्रैक, इनिशियल टाइम पे जाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आपने बताया था कि क्या कहते हैं, लेवल 1 2 3 4 होते हैं। लेवल ये 1 2 जो होता है वो एक दिन पे होता है, लेवल 3 4 जो होता है वो अलग दिन पे होता है। हाँ जी। तो सबसे पहले एंटर करने का तरीका क्या यही है या कुछ और भी होता है, या हम अपने आप आगे प्रैक्टिस करें या समथिंग लाइक दैट? इसलिए अगर आपको ट्रैक डेज करना है तो आप मेरा पेज फॉलो कर लीजिए, रेड लाइन रेसिंग स्टोर, या फिर बुध इंटरनेशनल सर्किट का पेज फॉलो कर लीजिए अगर आप दिल्ली से हो तो। मैंने उसमें दोनों आपको, चीजें करी हुई हैं। हाँ, उसमें आपको ट्रैक डेज के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरा एक और पेज है RRS ट्रैक डेज, तो ठीक उसमें है। मैं ट्रैक डेज की ही सिर्फ पोस्ट डालता हूँ। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हम ट्रैक डे कर रहे हैं। आप उसमें एनरोल करो, अब नॉर्मली ट्रैक डे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक ऐसा है। कुछ नहीं है कि आपको पहले ट्रेनिंग स्कूल करना पड़ेगा ट्रैक पे आने के लिए। तो आप नॉर्मल ट्रैक डे से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आपको बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपको जो बॉडी पोजीशन बताना होगा, सब कुछ होगा, वो हम आपको ट्रैक डे में ब्रीफ कर देंगे पहले ही, आपको ट्रैक पे जाने से पहले। ठीक है, तो मतलब आप लोग वहीं वहां पे अवेलेबल गाइडेंस एंड ऑल के लिए होगे, हर ट्रेनर एक मतलब अलग पर्सन के लिए अवेलेबल होता है या एक बैच के लिए अलग अवेलेबल होता है? बेसिकली जैसे कि जब भी हम ट्रैक डे करते हैं तो उसमें एक या दो न्यू राइडर्स होते हैं, तो उनकी BIC की तरफ से भी न्यू ब्रीफिंग होती है अलग से उन राइडर्स की, और हमारी तरफ से भी उनके लिए एक न्यू ब्रीफिंग होती है कि वो ट्रैक पे कैसे सेफ रहें बाकी राइडर्स के साथ में। अच्छा, ऐसा होता है। तो इसके कोई चार्जेस एंड ऑल वगैरह क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं हर इवेंट के लिए? वो सब ट्रैक डेज के लिए डिफरेंट होते हैं। एक नंबर और एक हम अमाउंट ले लेते हैं BIC से, वो नंबर ऑफ राइडर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा। तो जैसे कि ठीक है। एक एक ट्रैक डे पे 18 नंबर ऑफ राइडर से ऊपर नहीं अलाउड नहीं है। तो 18 राइडर्स होंगे तो आपको कॉस्ट कम आएगा, और अगर 10 राइडर्स होंगे तो आपको अमाउंट ज्यादा बहुत आएगा। ज्यादा है। वैसे होते हैं ठीक है। जी। ठीक है, और एक और चीज आपने बताई, जैसे FMSCI पे जो फॉर्म्स वगैरह आपने बताए, यस। तो ऐसे ट्रैक डे वगैरह करने के लिए वो फॉर्म्स भरना क्या आपको कंपलसरी है या? लाइसेंस, जो रेस लाइसेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस के लिए चाहिए जब भी आपको रेस करना है। आपको अच्छा, नॉर्मल सिर्फ वो ट्रैक फॉर्म्स। डे के लिए बस आपका सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक और है। कुछ नहीं चाहिए आपको। और एक और प्रॉपर राइडिंग गियर होना चाहिए। इन केस अगर आप सोचते हो कि मेरे को बस ट्राई करना है ट्रैक डे हम्म। एक बारी करके, मेरे को सूट नहीं लेना, मेरे को हम्म। लेदर सूट नहीं लेना, वो पड़ा रहेगा, तो आप मेरे स्टोर से उसको रेंट आउट भी कर सकते हो एक दिन के लिए। तो हमने ठीक है। अच्छे राइडिंग सूट्स रखे हुए हैं कि जो राइडर्स एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, और जी एक लास्ट क्वेश्चन है। जी। जैसे हम कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, हाँ तो हम कॉर्नरिंग पे जैसे आ रहे हैं पूरा थ्रॉटल देके, तो उसके बाद हम कॉर्नर कर रहे हैं। हाँ। कॉर्नर करते हुए ब्रेक्स अगर हमें जरूरत पड़े, जैसे हम वाइड जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो हम ब्रेकिंग अगर उस टाइम पे करते हैं तो कौन सी करनी चाहिए ज्यादा, और किस रेशियो में करनी चाहिए, आगे और पीछे में? आपको पहले तो बाइक अपराइट करना है ठीक है। और दोनों ब्रेक्स अप्लाई करनी है। हम्म। रियर ब्रेक आपको थोड़ा कम अप्लाई करना है, क्योंकि क्या होता है हाईएस्ट स्पीड्स पे रियर व्हील आपका थोड़ा लाइट हो जाता है जब भी आप फ्रंट ब्रेक दबाते हो, तो आपको अच्छा। रियर स्किड होने का या स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब नॉर्मली बस बाइक को ऑपरेट करो और ब्रेक कर दो। और BIC में इतने रन ऑफ एरियाज हैं कि आप अगर ओवरशूट करते भी हो तो गिरने के चांसेस बहुत कम है। आप ग्रेवल बेड में जा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो वो अपने आप आपको रोक लेगा। ओके, जैसे हम कॉर्नर कर रहे हैं और कॉर्नर करके जैसे आपने कहा अपराइट हो जाओ, जी इफ देयर आर चांसेस कि हम हल्का सा अपराइट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल लीन नहीं, हल्का सा हमने कर लिया, हाँ प्रॉपर अपराइट कर लिया, तो हम एकदम सीधे हो गए, तो हमने ब्रेक सब हम जैसे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। बट जी। लाइक इफ यू आर लीनिंग, तो अगर लीन करते हुए अगर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, सो ओनली द फ्रंट ब्रेक शुड बी अप्लाई। उसको लेग को बार करके हम अपनी बाइक का वेट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में डालते हैं कि हमारी बाइक राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, जिस भी साइड का हम लेग आउट करते हैं, वेट उस साइड ज्यादा रहे, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम।
चैट पे भी क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं. Is a naked bike Monster 821 advisable for a track day? Yes, it is advisable. You can ride Monster on track. या फिर कोई भी आप नेकेड बाइक चला सकते हो. आप मेरी YouTube पे वीडियोस देख सकते हो. मैंने S1000R चलाई हुई है और मैंने अपनी KTM ड्यूक जो है मेरी 790, मैंने वो भी चलाई हुई है ट्रैक पे. तो वो बहुत अच्छी चलती है. नेकेड बाइक्स बहुत अच्छा कॉर्नर करती है. काउंटर स्टीयरिंग में आपको हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका हैंडल बार वाइड होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ डीकैट डैमेज द इंजन इन लॉन्ग टर्म? डीकैट पाइप ज्यादा डैमेज, ऐसा डैमेज तो कुछ करता नहीं है, पर आपको उसमें एक फ्यूल एक्स्ट्रा फ्यूल मॉड्यूल लगाना पड़ता है, जो कि आपका जो फ्यूलिंग चेंज हुई होती है, जैसे कि कंपनी से जो भी फ्यूलिंग सेट होके आई है आपके ECU में, जो भी कमांड्स डल के आई हैं, वो आपके कैट के साथ में डल के आई हैं और आपके स्टॉक पार्ट्स के साथ में डल के आई हैं. तो जब तक आप और फिर आप आते ही उसको डीकैट कर दिया, आपने सब चेंज कर दिया, बट आपने ECU की अपनी मैपिंग चेंज नहीं करी, तो आपको वो चेंज करना पड़ता है. आपको उसमें कोई एड ऑन जैसे कि PC5 रैपिड बाइक या फिर अपना ECU फ्लैश, आप कुछ भी ये चीज करवा सकते हो. बस यही है क्वेश्चंस. One question. I have attended one training program of this Rajni Academy. Okay. Plus, I've written many times on BIC. मैं आपके साथ, आपके फादर के साथ सबके साथ राइड भी कर चुका हूँ. So what I noticed was that एक इन आउट का एक पैटर्न बताते हैं लोग BIC के ऊपर. नॉर्मली जो इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं आउट इन करना है. लेकिन मैंने नोटिस करा था जब मैं एक बार आप और आपके फादर थे और 7-8 राइडर थे हम लोग ट्रैक पे, सब लोग एक अलग पैटर्न से आउट इन करते हैं. आप लोगों के एक पैटर्न्स नहीं, क्योंकि आप मेरे आगे थे. हाँ, तो मतलब जैसे आप अगर बाहर से अंदर आ रहे हो तो हो सकता है आपके फादर पहले अंदर वाली लाइन पकड़ के वहीं से कट मार जाए. वो भी अलग अलग करते हैं राइडर्स. तो जैसे BIC का जो ट्रैक है वो तो आपके माइंड में छपा ही होगा. तो आपके पास पेपर पेन है, आप मेरे को एक बार बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आउट इन हर टर्न पे कैसा होना चाहिए, ताकि मैं उसका एक फोटो खींच लूं. मे बी इट विल हेल्प मी, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे आउट इन करना है या इन आउट करना है. आप एक काम करो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर दो. मैं आपको BIC के मैप पे डिजिटल जो मेरे लाइंस हैं, मैं आपको वो लाइंस डिजिटली मैं आपको एक पिक्चर सेंड कर दूंगा जिस लाइंस पे मैं चलता हूँ. तो बेसिकली सब राइडर्स की लाइन डिफरेंट होगी. अगर मैं जिक्सर चला रहा हूँ मेरी लाइन अलग होगी, अगर मैं ड्यूक चला रहा हूँ मेरी लाइन अलग होगी, अगर मैं R1 चला रहा हूँ मेरी लाइन अलग होगी. दैट डिपेंड्स ऑन सस्पेंशन, बाइक सेटिंग, और बेसिकली आपको कॉर्नर, आप क्या चीज कर रहे हो. आप रेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा डिफेंड होके चलना पड़ता है. आपको क्वालिफाइंग करना है तो आपको फास्टर टाइमिंग्स निकालनी है, तो आपको एंटर भी फास्ट करना है, एग्जिट भी फास्ट करना है. तो वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, और वो सब राइडर्स के रेफरेंस मार्क्स सब डिफरेंट है. आपको जिस लाइन पे कंफर्टेबल लगे आप उस पे जा सकते हो. या फिर मैं अभी आपको, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग करना, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा. नेक्स्ट ट्रैक पे कोई भी होगा तो मैं आपको एक बार आउटलैप करवा सकता हूँ ट्रैक पे, ताकि आप लाइन से फेमिलियर हो जाए, जो भी सेफ लाइन है. तो जैसे हायाबुसा है, तो उस पर मुझे अभी जैसे आप तो जिक्सर की लाइन बताएंगे अपनी, तो मैं अपनी बाइक का लाइन मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक रेफरेंस दे दूंगा जो आपको, अब अगर आप मेरी जिक्सर की लाइंस पे भी जाओगे तब भी आप बहुत ज्यादा सेफ रहोगे. अच्छा, मैं आपको भी पिंग कर देता हूँ. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन चैट में है क्वेश्चन. I am 5'1", which bike should I opt for track? 5'1", बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हो Yamaha R15 वर्जन 3. वो लो है बहुत ज्यादा, तो आप कोई भी राइडिंग शूज डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो आप इजीली वो चला सकते हो. या फिर KTM RC 390, उसकी राइड हाइट थोड़ी ज्यादा है, पर आप राइडिंग शूज के साथ चला सकते हो. बस. और कोई क्वेश्चंस? There is one from Rishi Agarwal. What is the cost of maintenance and ownership cost of a track day bike? Modifications and upgrade included. ऋषि सर, उसमें क्या होता है कि आपको एक बार ही अपनी बाइक पे सारे पार्ट्स का कॉस्ट लगाना है, जैसे कि सस्पेंशन है, ये है. अगर आप एक ही बार ही सारी चीजें लगा देते हो तो राउंड अबाउट आप 5 लाख तक का अपग्रेड्स, 5 to 6 लाख तक के अपग्रेड्स मिनिमम मान के चलिए. अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, जैसे राइडर्स करते हैं, मोस्टली राइडर्स करते हैं कि आपको ब्रेक्स इंप्रूव करनी है तो वो फर्स्ट ब्रेक इंप्रूव करते हैं.
कई राइडर्स होते हैं कि मेरे को पावर इंप्रूव करनी है तो सिर्फ पावर इंप्रूव करते हैं, कई राइडर होते हैं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ हैंडलिंग इंप्रूव करनी है तो वो हैंडलिंग ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और जो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट जो आपका आता है 5 to 6,000 किलोमीटर पे सर्विस कॉस्ट, वो हमें आप लगा लीजिए डबल पड़ता है 6,000 किलोमीटर तक, क्योंकि हम तब तक 2 या 3 बार सर्विस, डबल या ट्रिपल पड़ता है क्योंकि हम 2 या 3 बार सर्विस कर चुके होते हैं। और जो आपके स्ट्रीट ब्रेक पैड्स जो आते हैं वो आपके फ्रंट के अगर बात करें तो वो आते हैं 8,000 to 9,000 के बीच में। हमारे जो फ्रंट के ब्रेक पैड्स आते हैं ट्रैक वाले वो स्टार्ट होते हैं 20,000 से और अप टू 28,000 30,000 तक उनकी कॉस्ट जाती है, जो कि आप लगा लीजिए 1,000-1,500 किलोमीटर चलते हैं बस। सिमरन, आई हैव अ क्वेश्चन जी। अब जैसे हम नो वाइस राइडर हैं, हम नए अभी ट्रैक पे आएंगे जैसे, तो ये नी डाउन जो है मैंने सुना है लोगों से कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज होती है, बट ये क्या इतनी इम्पोर्टेंट होती है? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जो नई होंडा CBR SP आ रही है, इस पे आपके क्या व्यूज? नी डाउन ज्यादातर राइडर्स के लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि एक आपको एंगल मिल जाता है कि हाँ इससे कई जो राइडर्स नी डाउन नहीं करते उनको डर लगा रहता है कि इस एंगल से ज्यादा नीचे जाऊंगा तो मैं क्रैश कर जाऊंगा। तो नी एक ऐसा पॉइंट होता है कि आपको पता होता है कि आप उस पॉइंट तक कंफर्टेबल हो और राइडर को कॉन्फिडेंस आता है। और जैसे कि आजकल राइडर्स के हैं एल्बो तक आ गए हैं, तो वो ये चीज होती है कि जैसे नी टच होता है तो वो स्लाइटली नी अपना ऊपर करने लग जाते हैं कि आपको लीन एंगल और ज्यादा मिल जाए। तो वो है। और CBR 1000RR बहुत ही अमेजिंग बाइक है और वो क्लोजेस्ट टू अ MotoGP मशीन जिसको कह सकते हैं आप। उसका राइडिंग स्टांस देखो और जो उस पे पार्ट्स लगे हुए हैं जो CBR 1000RR पे है उस पे, तो उस पे आप ट्रिपल क्लैम्प देखो, हैंडल बार्स देखो, टैंक पोजीशन, सिटिंग पोजीशन जो भी है वो टोटली एक MotoGP मशीन से ड्राइव करके बनाई गई है उसको सेम। तो वो बाइक ऑलरेडी बहुत अच्छी है। और जो जापान में जो रेसेस हो रही हैं ऑलरेडी, जो टेस्टिंग चल रही हैं, जो रेस टीम्स उस पे टेस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो कर रहे हैं उस बाइक पे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इस ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS इज अ गुड ट्रैक बाइक? यस, स्ट्रीट ट्रिपल RS बहुत अच्छी बाइक है। ऑलरेडी जो ट्रैक पे कई लोग हैं वो यूज कर रहे हैं ट्रैक डेज में, और जेके टायर में भी बहुत लोग हैं जो 600 सेगमेंट में वो बाइक यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं और टाइमिंग्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। लास्ट ईयर सागर शेल्डेकर ने भी स्ट्रीट ट्रिपल RS चलाया था जेके टायर में और बहुत अच्छा राइड करा था उसने। मेरे नॉर्मल टायर्स जो है मेरी बाइक पे, तो क्या लगता है कितना टाइमिंग डिफरेंस आ जाता होगा अगर मेरे पास वो स्लिक वाले टायर्स हो जो ट्रैक वाले होते हैं, कंजे टायर जैसे बोलते हैं? स्लिक टायर्स में और इसमें आप लगा लीजिए आपका मिनिमम जो आप अभी टाइमिंग्स क्या कर रहे हो? मैं तो यार बिगिनर ही हूँ, मेरा टाइमिंग मतलब 3 से थोड़ा सा कम। तो सर आपका ये डिपेंड करता है। कई राइडर्स का क्या होता है, अगर आप स्लिक टायर्स यूज करते हो तो आपको स्लिक टायर्स के साथ टायर वार्मर्स यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप टायर वार्मर्स यूज नहीं करोगे तो आप फर्स्ट कॉर्नर पे बहुत राइडर्स क्रैश भी हुए। तो ये चांसेस है इतने हैवी बाइक के साथ वो क्रैश कर जाए, क्योंकि उसको हीट जनरेट करने में टाइम लगता है। आपको मिनिमम 3 लैप्स लगते हैं हीट जनरेट करने के लिए उन टायर्स में। तो बेसिकली आपको टायर वार्मर्स अगर आप लेते हो, यूज करते हो, तो मिनिमम अगर आप सही लाइंस भी पकड़ो तो 10 सेकेंड्स कट डाउन कर सकते हो जिस टाइम पे अभी आप हो। हु इज फास्टर, यू और सागर? मैं ज्यादा रेस करता हूँ तो इसलिए मैं फास्टेस्ट हूँ, पर जो बाइक रिव्यू जो कर पाता है, जो डिटेल में जो बाइक स्पेसिफिकेशन बता पाते हैं, वो मैं इतना स्पेसिफाई करके नहीं बता पाऊंगा जितना सागर, क्योंकि सागर ऑलरेडी बाइक रिव्यू करते हैं और वो डेप्थ में जाके बाइक के बारे में बता पाते हैं ज्यादा। सिमरन BIC खोल जाएगा क्या? इनका जो लाइसेंस का इशू था अभी वो बस एक स्टे डाला था ऑलरेडी। जब वो न्यूज आई थी उसी दिन हम ट्रैक डे कर रहे थे और उससे 2 वीकेंड्स तक बाद तक भी हमने ट्रैक डे किए हैं। तो ऐसा अभी तक फॉर ऑल इवेंट्स BIC इज ओपन।
Thank you. Okay, so guys, any more questions you have for Simran? सिमरन, आप कभी आइल ऑफ मैन टीटी में जाओगे? नहीं, क्योंकि अगर मेरे को स्पॉन्सर्स भी चाहिए और वो एक रोड है, तो रोड में सेटअप डिफरेंट रहता है, क्योंकि हमारे बीआईसी में भी आके एक आइल ऑफ मैन टीटी ने चलाया, राइडर ने चलाया हुआ है, वो उसका नाम है बॉब कॉलिंस, आप उसको जाके सर्च भी कर सकते हो। बॉब कॉलिंस, बॉब कॉलिंस बहुत अच्छा राइडर है और उसने यहाँ पर बहुत पहले ही आके बहुत अच्छे टाइमिंग्स किए थे। तो उनको क्या होता है, उनको अनसेटल हमें चाहिए होती है ट्रैक पे बाइक सेटअप वाली, जो बाइक अच्छे से सेटअप हुई हो। और जो आइल ऑफ मैन टीटी में राइडर्स जो राइड करते हैं बाइक, वो बाइक टोटली लाइक आप लगा लीजिए सेटअप डिफरेंट टाइप से हुई होती है, क्योंकि वहाँ बम्पी रोड्स हैं, कर्व्स हैं, जंप्स हैं, सब कुछ हैं। तो मैं मेरे ख्याल से तो नहीं जाऊंगा। All right, guys, we are at the end of the session now. So thank you very much for joining in, and thanks a lot, Simran, for getting an informative session for all the participants. Thank you, Simran, so much. We'll see you at your store very soon, because I don't think so. BIC is my cup of tea because I'm 109 kgs. And Preet, thank you so much for another amazing seminar. Looking for the next Sunday. Sure. Thank you so much. Bye-bye. Okay. Bye. All right, guys. Thank you so much for joining in. Thank you. All right. Take care.